Hello students, today I am here to represent the first chapter of Maths class 8th, and that is the rational number. So before going detail about the rational number, we have to think about the number system. We need to say the number system is a very important for whole mathematics. Means because we have to play with the numbers. So what type of numbers we can have, we must have to analyze that things. So if we understand closely that what type of number it is, what is that called, how to operate it, then only we will be confident in our all the chapters of mathematics. So that is very essential. It's a very important part. So before getting understand the meaning of rational number, I will go for the few recap in what we have already studied in class 6 7 and all. So here I am going for the first number, that is the natural number. It is also called the counting numbers, and we can start 1 2 3 4 up to infinite. There is no last natural number. कोई भी लास्ट नेचुरल नंबर यू कांट से. इफ सपोज यू कैन ट्राई कि 100 है तो मैं कह दूंगा 101. आप कहोगे सर 1000 है तो मैं कह दूंगा 1001. सो देयर इज नो लास्ट नेचुरल नंबर, इट इज नॉट डिफाइंड. सो दैट इज व्हाई the set of natural number is a infinite set. You cannot count the number of elements inside this set. So that's why natural number start with. One more thing you can say, like what is the smallest natural number, you can say 1. Okay, suppose अगर मैंने एक बास्केट लिया और उस बास्केट में मैंने सपोज ये 5 पेन हमने इसके अंदर डाल दी. ठीक है, अब मैंने 5 पेन जब इसमें रखा और मैंने आपसे कहा कि चलो भाई 3 पेन इसमें से निकाल लो, तो व्हेन यू टेकन 3 पेन आउट, so how many pen are left over there? I think you will say 5 minus 3, that is 2. correct है. फिर मैंने कहा नहीं भाई, अब आपको क्या करना है कि 5 के 5 जितने भी पेन है सब निकाल लो बाहर. तो आपने सारे निकाल लिए 5 minus 5. तो अब ये जीरो क्या कर रहा है, मतलब अब हमारे जो ये बास्केट था उसमें नंबर ऑफ पेन्स कितने बचे 5 को लेने के बाद? कुछ नहीं बचा. तो कुछ नहीं बचा, उसको कैसे रिप्रेजेंट करें? तो हमारे मैथ्स ने उसको बोला कि अगर कुछ नहीं बचा है तो उसको हम बोलेंगे जीरो है. तो वहीं से एक जीरो का कॉन्सेप्ट आया. तो जीरो का जब कॉन्सेप्ट आया तो मुझे नेचुरल नंबर से बात नहीं बनी मैथ्स में, तो फिर हमें आगे बढ़ना पड़ा और फिर मैंने उसका नाम दिया होल नंबर. और इसी नेचुरल नंबर के अंदर मैंने जीरो को भी डाल दिया लाइक दिस. सो नेम बस डिफरेंट हो गया क्योंकि यहाँ जीरो भी आ गया और जीरो की मुझे जरूरत पड़ी थी, जैसे कि मैंने भी बताया कि मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं इसको. यहाँ पे कोई भी पेन नहीं है तो somebody will ask how many pen is there, तो वहां पे जीरो बोलना पड़ा. उसकी वजह से एक नया नाम देना पड़ा होल नंबर्स. तो यहाँ पे क्वेश्चन बना कि क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? तो यस, बिकॉज देखिए 1 2 3 4 अप टू इनफिनिटी पूरा नेचुरल नंबर तो था, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ गए. सो वी कैन से यस, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड द होल नंबर्स. बट व्हाट अबाउट द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द डिफरेंट वे कि is there all the whole numbers are called the natural numbers, or simply I can say ki whole numbers are also called the natural numbers? No, because the one number is there zero, due to which we can't say this answer, because all the whole numbers are not the natural numbers except zero. So this is false, means whole number is not called the natural number, but natural number is called the whole numbers. Means natural numbers is inside the whole number, but whole number cannot be inside the natural number. अब मैंने आपसे कहा कि ये यहाँ पे अगर मैंने कहा आपसे 5 पेन थे और मैंने कहा भाई ऐसा है कि आप इसमें से 7 पेन निकाल लो. आप कहोगे सर इसमें तो 5 पेन थे, आपने 7 पेन कैसे निकालोगे? तो मैथ्स तो कहता है नहीं, आपको नंबर तो रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा, जो भी होगा आंसर क्या हो. तो आप कहोगे ठीक है 5 minus 7, आप कहोगे -2. अभी -2 क्या चीज है? नेगेटिव आपने लगाया, तो दिस इज व्हाट, इट इज द अपोजिट ऑफ द नेचुरल नंबर. अपोजिट ऑफ द नेचुरल नंबर मीन्स
like just put the negative sign over there, that is called the opposite of the natural number. तो what will be here माइनस, तो माइनस की मुझे जरूरत पड़ी ना, अभी तक तो जीरो से काम चल जा रहा था बट उसके पीछे भी मुझे जाना पड़ा माइनस। तो यहाँ पे हम एक नंबर लाइन का हेल्प लेंगे। नंबर लाइन की हेल्प का नाम क्या हो गया, जैसे आई और जेड, दिस इज कॉल्ड द नंबर लाइन, इंटीजर लाइन। और यहाँ पे कहीं इन बिटवीन समवेयर जीरो यू कैन पुट। राइट साइड में आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर रखना है विद द सेम डिफरेंस, लाइक दिस वे। एंड सपोज 5 आई विल आई एम नॉट एडिंग आफ्टर 5, इट डजंट मीन कि यहाँ 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, सब कुछ है क्योंकि एरो लगा हुआ है, इट मींस गोज ऑन, इट इज गोज टू इनफाइनाइट। एंड इसके पहले आया तो इसके पहले में हमने सेम डिफरेंस पे 1 को नेगेटिव लगा के -1 यहाँ लिखा, 2 को नेगेटिव लगा के -2 यहाँ लिखा, 3 को नेगेटिव लगा के -3 लिखा, -4 लिखा, -5, -6, -7, -8, ऐसे ही इधर गया। तो सारे नेचुरल नंबर जो सारे पॉजिटिव नंबर है उस पर नेगेटिव लगाया तो इधर हम नंबर पे आ गए। तो ये जो एक नया सेट बना, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो भी हमने ऊपर पढ़ा, इसको होल नंबर कहते हैं, इसमें हमने एक्स्ट्रा कुछ नंबर और डाल दिया, सारे नेगेटिव भी डाल दिए और इनको मिला के इसको हमने बोला इंटीजर। तो इंटीजर का क्या कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहला इंटीजर कौन सा होगा या सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट आप काउंट कर पाओगे, देखिए -4 के पहले और -5, उसके पहले -6, उसके पहले -7, तो ये माइनस इनफाइनाइट तक चला गया। तो देयर इज नो फर्स्ट इंटीजर, डॉट डॉट लगा दिया मैंने। फिर उसके बाद आया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड देन आफ्टर डॉट डॉट डॉट। इधर भी देयर इज नो लास्ट इंटीजर एंड इधर भी देयर इज नो फर्स्ट इंटीजर। अब इसमें एक बात और हो गई कि भाई बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी दो नंबर को आपको कंपेयर करना है, जैसे मान लीजिए 1 और 5, और पूछा कोई कि भाई इन दोनों 1 और 5 में कौन बड़ा है, विच वन इज द ग्रेटर नंबर। तो सिंपल सा आंसर कि नंबर लाइन में जो नंबर राइट हैंड में लिखा हो वो हमेशा बड़ा होता है। तो 1 और 5 को कंपेयर करना है, तो 1 और 5 में कौन सा नंबर राइट पे है, 5 वाला, तो दैट इज व्हाई 5 इज द ग्रेटर देन 1। सेम है कॉन्सेप्ट हियर आल्सो, लाइक -4 and -1, which one is greater one? Simple, -1 is right side of the -4, that's why -1 is greater than -4. What about -2 and 0, which one is greater one? That same concept, 0 is right side of -2, that's why 0 is greater than -2. So this way we can say that which one is greater or which one is smaller. मैंने भी कहा कि भाई नेचुरल नंबर को हमने लिखा था लाइक 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। होल नंबर्स को लिखा था मैंने 0 से स्टार्ट किया था, यहाँ तक गए, है ना। और फिर इंटीजर्स आई या जेड दोनों बोलते हैं, इसको मैंने ऐसे लिखा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट हुआ कि भाई क्या हमारे सारे होल नंबर्स इंटीजर्स कह सकते हैं, तो क्या सारे होल नंबर्स इंटीजर के अंदर हैं कि नहीं, देखो हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ पूरा यहाँ तक गया, ये सारे होल नंबर्स हैं कि नहीं, तो ऑल द होल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स, राइट। एंड व्हाट अबाउट द नेचुरल नंबर, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड द होल इंटीजर्स, यस एग्जैक्टली, बिकॉज 1 से शुरू हो रहा है पूरा आगे तक गया है, तो पूरा इंटीजर भी पूरा नेचुरल नंबर भी इसके अंदर है, तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स, ऑल होल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। बट इसका उल्टा पूछें, ऑल द इंटीजर्स आर कॉल्ड द होल नंबर्स, नो, some of integers are called the whole numbers but all the integers are not the whole numbers because negative यहाँ है but यहाँ negative है ही नहीं, तो सारे integers whole numbers नहीं होंगे, हाँ सारे whole numbers integers होंगे। सेम है नेचुरल और इंटीजर्स में, क्या सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर होंगे, नहीं होंगे, बिकॉज few of the natural numbers means like sorry few of the integers are called the natural numbers because यहाँ से यहाँ तक इसके अंदर है ही नहीं, तो नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स बस इंटीजर्स आर नॉट द नेचुरल नंबर्स। अब देखिए, अब जैसे मैंने यहाँ पे एक केक ले लिया, जैसे कोई भी केक ले लेते हैं, ये केक है मान लीजिए, और मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि ये पूरा एक केक जो है इसको मैं 2 पार्ट में करना चाहता हूँ, आई जस्ट वांट टू डिवाइड इन 2 पार्ट्स। सो ऐसे आपने 2 पीस कर दिया, तो इतने वाले पीस को आपने क्या बोला, हाफ। एंड हाउ टू राइट हाफ, होल इज 1 का आपने आधा किया है, 2 पार्ट में किया, 1/2। सेम वे दिस पार्ट इज आल्सो कॉल्ड 1/2। तो ये 1/2 वाला जो कॉन्सेप्ट आया, ये तो भाई अभी तक आया ही नहीं था, अभी तक तो मैं इंटीजर्स तक गया था। अब ये नंबर कौन सी बला आ गई, मतलब हाउ कैन आई रिप्रेजेंट दिस हाफ, अभी तक तो मैंने इंटीजर्स को दिखा दिया, भाई इंटीजर्स की जरूरत पड़ी थी क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स पे नेगेटिव लगाया तो नेगेटिव नंबर्स आया,
और उसको कब क्लब किया जीरो के साथ, and zero is not having any positive or negative sign, you be careful about that. So zero, all the positive numbers, all the negative numbers you are putting inside a one set, that is called the integers. But this 1/2 I have never seen in the integers, लेकिन फिर भी इसकी जरूरत मुझे अपनी लाइफ में है, तो मैथ्स कहता है इसको भी फिर डिफाइन करो, तो मुझे इंटीजर्स के आगे बढ़ना पड़ा नंबर सिस्टम में कि मैं वहाँ अब क्या जाऊँ, तो इस तरह के नंबर्स को मैंने देखना चाहा कि भाई ये क्या होते हैं। तो अगर मैंने देखो नंबर लाइन पे अगर हमने जो इंटीजर बनाया था, सपोज यहाँ जीरो था, यहाँ वन था, और यहाँ मान लो यहाँ वन है और यहाँ पे टू है, ऐसा ये इंटीजर लाइन है। और हमने कहा कि भाई ऐसा है कि आप इसको हाफ को इस पे रिप्रेजेंट बताओ, ये कहाँ है। तो हाफ इज व्हाट, जस्ट इन बिटवीन द जीरो एंड वन। तो जीरो और वन के बीच में, इतनी लेंथ के बीच में ये पॉइंट लगाया, तो इसको 1/2 बोल दिया, है कि नहीं। अब मैंने कहा ठीक है, अच्छा इसके भी एक पीस और कर दो, मतलब ये पूरे केक को हमने ऐसे डिवाइड किया और ऐसे डिवाइड किया। तो देखो ये अब पार्ट जो कहलाएगा, इतना पार्ट, ये पार्ट क्या हो गया, ये पार्ट। अब देखो ना पूरे कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, आउट ऑफ 4 पार्ट्स 1 पार्ट आई वांट टू टेक, सो आउट ऑफ 4 पार्ट्स 1 पार्ट आई एम टेकिंग, सो दिस रिप्रेजेंट्स 1/4। अब 1/4 यहाँ कहाँ होगा, तो 1/4 कहाँ होगा, देखो जीरो और हाफ के एकदम बीच में होगा, क्योंकि हाफ का ही इसको आधा किया, ये हाफ था, अब इस हाफ का आधा किया, तो हाफ का आधा क्या होगा, इसके बीच में जाएगा, तो ये वाला नंबर क्या कहलाएगा हमारा 1/4। अब मैंने कहा कि ये हाफ जो आया, अब इतना हाफ, ये 1/4 था, ये पार्ट ये लिया, इसको भी हाफ कर दिया, तो अब ये वाला कितना बन जाएगा, 1/8 बन जाएगा। तो 1/8 कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा। अब आप बताओ कि अगर मैंने जीरो और वन, ये इंटीजर था वन, ये जीरो है, और जीरो और वन के बीच में तो कोई इंटीजर्स होते नहीं है, नो डाउट, लेकिन ये नंबर्स क्या कहलाएंगे, तो इन नंबर्स को बोला गया रैशनल नंबर, ठीक है। अब हमने आपसे पूछा कि हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर इन बिटवीन द टू इंटीजर्स, और देखो उसको हाफ पे हाफ पे हाफ पे हाफ पे हाफ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो अगर ये इसके बीच में फिर जाएंगे, इसके बीच में फिर जाएंगे, इसके बीच में फिर जाएंगे, तो infinite rational numbers you can obtain from the two integers, in between the two integers। बात में आ रही है। जैसे अगर हमने कहा यहाँ पे कि ये 1 है और ये 2 है, इनके बीच में कोई नंबर बताओ, तो ठीक है बीच में यहाँ पे ये क्या होगा, इसका नाम क्या कहलाएगा बताइए, इसका नाम, ये 1 और 2 है, तो 1 और 2 के ठीक बीच में जाना है, तो क्या होगा, आप कैसे करोगे, 1 + 2 अपॉन 2 कर लो, तो 2 + 1 क्या हो गया 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2। अब 3/2 और 1 ले लिया, मान लो यहाँ पे 1 और इसको अब बोल दिया 3/2, इनके बीच में जाए तो यहाँ आ गए। अब ये क्या क्या, इसको कैसे निकाले, तो 1 + 3/2 को भी हाफ कर दो, इसका भी हाफ किया तो क्या आ जाएगा, देखो 2 × 2 + 3 5/2 एंड अपॉन 2 दैट इज 5/4। 5/4 का मतलब यहाँ आ गए, ये हो गया। तो ऐसे जाते गए तो मुझे पता चला कि भाई इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं किसी दो इंटीजर के बीच में। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखी जाए, भाई इंटीजर की डेफिनेशन आपने बोला कि ठीक है, ऑल द नेगेटिव नंबर्स जीरो एंड ऑल द पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग द वन साइड इज कॉल्ड द इंटीजर्स, नो डाउट। बट व्हाट अबाउट द रैशनल नंबर, तो हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, क्योंकि रैशनल नंबर्स हमने कहाँ से निकाला है, हमने निकाला है इंटीजर्स के सेट से। ये आपका इंटीजर्स का सेट था, याद है, यहाँ पे बल्कि ऐसे लिखा, यही तो था इंटीजर्स। तो मैंने कहा कि भाई रैशनल नंबर्स को डिफाइन करना है मुझे, तो मैंने कहा कि अभी जैसे मेरा 1/4 आया था, 1/8 आया था, है ना, 1/16 आया था, इस तरह के नंबर्स अगर आ रहे हैं, 2/5 आया, तो यही तो रैशनल नंबर्स कहलाए थे। तो मैंने कहा भाई रैशनल नंबर्स हम डिफाइन कैसे करें, तो मैंने कहा ठीक है, अगर हमने इसके न्यूमरेटर को देखा, डिनोमिनेटर को देखा, तो क्या इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इसके अंदर है कि नहीं, देखो, तो मैंने इसको लिखा एक नंबर P/Q, वेयर P एंड Q बिलोंग का साइन होता है, ये ऐसे बना के, ये बिलोंग्स टू, तो P एंड Q बिलोंग्स टू कहाँ बिलोंग करते हैं, ये P Q इस इंटीजर के अंदर करते हैं, I में कर लिए, इसका नाम I होता है सेट का। और एक प्रॉब्लम ये हो गई कि किसी भी नंबर को अगर आप जीरो से डिवाइड करते हो तो इट कैन नेवर बी डिफाइंड, ठीक है, बिकॉज जीरो का टेबल तो आपने पढ़ा भी नहीं है, कभी पढ़ा है जीरो का टेबल, तो जीरो कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर्स।
तो यहाँ q है और q क्या है, इंटीजर्स में है, तो q जीरो भी तो ले सकता है। मैंने ये तो नहीं कहा तुम कोई भी उठा लो, तो q यहाँ -3 भी उठा सकता है, q यहाँ -1 भी उठा सकता है, q 1 भी उठा सकता है, तब तक तो ठीक है। लेकिन q अगर जीरो उठा लिया तो, बिकॉज जीरो तो इंटीजर के अंदर है, तो मुझे याद रखना पड़ा कि वेयर q कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर q ने जीरो उठा लिया तो ये पूरा p अपॉन q नंबर डिफाइंड नहीं हो पाएगा। बट p के लिए क्या कंडीशन लिखनी है? नहीं, क्योंकि p जीरो अगर उठा भी लिया तो जीरो अपॉन समथिंग लाइक जीरो अपॉन q इज ऑल्सो जीरो, तो इसका आंसर तुम दे सकते हैं ना। लेकिन इसका आंसर लाइक इसका आंसर वी डोंट हैव एनी आंसर ऑफ इट। तो p के लिए कोई कंडीशन नहीं बनाया, सिर्फ q के लिए बनाया कि भाई p तुम कोई भी इंटीजर उठाओ, q जीरो नहीं उठाना चाहिए। करेक्ट? all the integers are rational numbers. Is it true or false? Tell me. All the integers are rational numbers. अभी रैशनल नंबर को हमने पढ़ा था कि ये p by q के फॉर्म में होता है, something in the numerator, something upon something in the denominator, where p and q बिलोंग्स कहाँ करता है, ये दोनों p और q, ऊपर वाला और नीचे वाला कहाँ रहता है, वो इंटीजर्स के अंदर रहता है। और एक कंडीशन क्या थी q की, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर है तो q जीरो भी उठा सकता है, और नीचे जीरो आ गया तो क्या होगा, ये डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए मैंने जीरो को नहीं लेना है, तो q कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो ये पूरी इसकी डिफिनेशन हो गई थी रैशनल नंबर की। अब मैंने कहा कि भाई क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं? आप रैशनल इंटीजर्स को पहले ध्यान से देखो, इंटीजर्स क्या था, यही तो था -2 -1 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक। अब मैंने ये कहा कि क्या सारे इंटीजर्स रैशनल होते हैं? तो ठीक है भाई, आप कोई भी इंटीजर उठा लो, -1 उठा लो, तो -1 अब नीचे कुछ नहीं है तो मैं अपने आप से 1 लिख सकता हूँ ना, बिकॉज -1 अपॉन 1 -1 ही होता है। तो क्या ये p बाई q फॉर्म में नहीं है? देखो p इंटीजर है, -1, q इंटीजर है 1, तो p बाई q where p and q belongs to integers, और q जीरो भी नहीं है, 1 है। तो all the integers any like a zero you can take, 0 upon 1, तो p देखो 0 q 1 दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये इस फॉर्म में आ गया कि नहीं? तो all the integers are rational numbers। करेक्ट? ये ट्रू हो गया। करेक्ट है। लेकिन क्या all the rational numbers are integers? अब rational numbers मैंने 2/3 लिया, 2/3 तो rational number है ना, ये p है 2, q है 3 और q 0 भी नहीं है, तो बढ़िया, सब कुछ बढ़िया यहाँ पे है p by q। अब क्या ये इंटीजर है क्या? इट कैन नेवर बी द इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब तुम जानते हो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में खाली 1 होना चाहिए, डिनोमिनेटर में और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो ऑल द रैशनल नंबर्स आर नॉट द इंटीजर्स, फ्यू रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स लाइक 3 इज द रैशनल नंबर एंड आल्सो इंटीजर, बट व्हाट अबाउट 2/3? 2/3 इज ऑल्सो 2/3 इज अ रैशनल नंबर, बट 2/3 इज नॉट एन इंटीजर। तो ये केस से हम ये पता कर लिए कि ऑल द